Welcome to session number 14. We are going to start with autocorrelation in this particular session. So two things we are going to understand. पहली बात तो autocorrelation जो है उसको टेस्ट करने के लिए आपने क्या क्या चीजें देखी हैं? What kind of tests we have seen? The major test that is very prominently used is which one? Durbin-Watson t-test, right? उसके अलावा भी कोई टेस्ट है क्या डर्बिन-वाटसन बेस्ड? H test. डर्बिन-वाटसन H टेस्ट, बट वो किसी एक स्पेसिफिक केस में ही यूज होता है. व्हाट इज दैट? और इज इट यूज्ड इन जनरल? When explanatory variables have lagged values of dependent variable. परफेक्ट. सो ये जो हमारा डर्बिन-वाटसन डी टेस्ट होता है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं. तो उसमें एक अजम्पशन ये भी होती है कि जो भी मॉडल मैं रन कर रही हूँ, जो भी मेरा रिग्रेशन मॉडल है, उसके अंदर मेरी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की लैग्ड वैल्यूज या डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग्ड वैल्यूज? Dependent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग्ड वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. अगर होती है तो ये जो टेस्ट है दिस डजंट वर्क. सो इन केस आपके मॉडल में आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी एक लैग्ड वैल्यू है या कोई भी लैग्ड वैल्यू है, वो अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो वी वोंट बी यूजिंग डर्बिन-वाटसन डी टेस्ट, वी विल बी यूजिंग Durbin-Watson H test. So that specific case is tackled using Durbin-Watson H test. So when you have lagged value of dependent variable in regression. So this is what happens, right? So these are the two things. उसके अलावा we have other tests as well, but हमारे लिए इस पूरे टॉपिक में जो मेन टेस्ट रहेगा, we will be doing Durbin-Watson D test. That is one thing. उसके अलावा there is one thing that we studied in the heteroscedasticity portion, which was कि most of the times you will have heteroscedasticity. तो हम अपने जो जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं या जो टी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, वो अंडर द अजम्पशन ऑफ नो हेट्रोस्किडास्टिसिटी उनको एस्टिमेट करते हैं. बट हेट्रोस्किडास्टिसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगी ही, तो इसीलिए आप जो अपने स्टैंडर्ड एरर्स निकालते हो उनको हेट्रोस्किडास्टिसिटी के लिए करेक्ट कर लो एंड देन स्टार्ट doing whatever level of significance test and everything that you can do. Similar pattern या similar हमारे पास correction available है in case of autocorrelation as well. So what do we call those standard errors when we correct for autocorrelation? क्या बोलते हैं उसको? क्या नाम है उसका? Newey-West standard errors. Do you remember this? बिल्कुल just at the end there's a slight mention of this. No? Yes, ma'am. In the end, it was mentioned that it is used to correct standard errors Yes. in large samples. Used to correct standard errors for autocorrelation in case of large samples. In case of large samples. ठीक है, तो दिस इज अ सिमिलर टास्क. तो जो हेट्रोस्किडास्टिसिटी करेक्ट करने के लिए हेट्रोस्किडास्टिसिटी करेक्टेड वाइट स्टैंडर्ड एरर्स थे, वही सेम काम यहाँ पे हमारे न्यूई स्टैंडर्ड एरर्स कर रहे हैं. तो हम लोग इन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वही देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Actually I tried to look for specific questions on this, but I think a general representation would be more suitable.
मुझे प्रॉपर थोड़ा सा क्वेश्चन मिला नहीं जो ये सब चीजों को केटर करता हो. So we'll just be doing everything in general. ठीक है. तो first thing that we are going to do is let's try to call all the basic soft packages and everything. I have already installed them, so I will actually not. There won't be any need for me to run that, but you can actually do that. तो ये सारे packages and just make sure that you have your entire environment empty. Everything is ready. You have installed all these packages. So we are just using all the packages that we have already run. So because I had already done all of this, so now it's just asking me to do everything. No, 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 no. Okay, fine. So this is what we have here. Okay. So now that we are done with this, कई बार जब आपको क्विकली चीजें समझनी होती है ना, कुछ डेटा सेट्स जो होते हैं आर में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं. ठीक है. तो जैसे एक डेटा सेट है जिसको बोलते हैं एम्प्टी कार. एम्प्टी कार, दैट डेटा इज वेरी रेडिली अवेलेबल. यू डोंट हैव टू कॉल एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. यू कैन जस्ट यू नो सो जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, वी कॉल द डेटा फ्रॉम एक्सेल और वी कॉल द डेटा फ्रॉम अ CSV. कुछ प्री इंस्टॉल्ड डेटा सेट्स होते हैं आर में. तो जिसका यहाँ पे एक one of the examples of this data is this empty car, which is motor trend car road test. So this data set is very easily available. So what I can do is I can just call this data and then try to check if there is auto correlation in this data or not. So आप क्या कर सकते हो, आप अपना data one नाम दे सकते हो इस particular data को, which is empty car. So this is an example data set. Data set in R. ठीक है. So this is an example data set. So I will, मैंने empty car को एक नाम दे दिया data one, या फिर आप सिर्फ empty car नाम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो. ठीक है. So मैंने ये इसको रन किया and let's see what is happening. Empty car. Ma'am, is empty car with an S. Okay, empty cars. Yeah, empty cars. हाँ, ठीक है. So this is the data and so you see if you read this error ना, तो इसने बोला कि empty car object मिला ही नहीं. तो मिला नहीं मतलब या तो ऐसा कुछ है नहीं, या फिर मे बी ऐसा कुछ है और मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया. सो whenever you feel something like this comes up at the as the error, so that is your indication to see कि क्या इसके लिए कोई पैकेज गायब तो नहीं है, या फिर आपने कहीं स्पेलिंग में तो एरर नहीं कर दिया है. तो अगर हमने मान लो स्पेलिंग में एरर नहीं किया होता तो हमारा सेकंड गेस होता कि कुछ पैकेज तो मिसिंग नहीं है जिसमें ये डेटा होता है. तो फिर हम हम लोग इक्वल साइन नहीं लगाना. इक्वल साइन नहीं लगाना है. Instead we have to use brackets. नो यू कैन. Like equal sign तो is तो for मैं a sign operator. या तो सी इक्वल जो है, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू 2 और मैंने मान लो इसको रन कर दिया. तो यहाँ पे जब भी मैं दोबारा डेटा में ए यूज करूंगी ना, तो वो ए को 2 मान लेगा और वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा. सिमिलरली मैं सेम काम ऐसे भी कर सकती थी, दैट बी इज इक्वल्स टू 5 लेट्स से. So this also can be done. So these are two different ways of assigning some, value to a particular variable. Ma'am, data use करना है. Data. Ma'am, data is a command that we have to use in order to call empty cars. Okay, so you are saying कि आप, this is what Yes. you want to do? Yes, ma'am. An empty cars. Okay. And Is this what you want me to do? yes, ma'am.
So should I assign it to something? Ma'am, you can. Okay. Okay, and if I want to see the data now, what should I do? View? मैम इन्वर्टेड कॉमास में एम्प्टी कार्स होना चाहिए. Okay. Here? Yes. Okay. Is that what you're saying? Yes, मैम मेरे उसमें तो हो रहा है. Like I don't know आपके उसमें क्यों नहीं हो रहा. Hmm. It's not working in my system. मैम आ गया ना ऊपर डेटा 132 ऑब्जर्वेशन 11 वेरिएबल्स. या तो डेटा वन तो पहले से ही था. अच्छा, एक सेकेंड रुको. लेट्स डू दिस. लेट्स रिमूव एवरीथिंग. लेट्स स्टार्ट अफ्रेश. हाँ जी, अब बताओ. इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए. So now this is empty cars. And when I click on that, now it's working. Okay. Fine. So, okay. So once I do data and then name of my data, then it is ready for me to use. And the name of the data set is empty car now. So जब भी मैं empty car मान लो अब call करूंगी. So it should empty cars. So it is callable now. And let's say dot, or maybe I'll just do summary of empty cars. At least it should give me something. Yeah, ठीक है. Yes, it's called in my system also now. I think something was going on. We had too much assignments. ठीक है. So either you can just call your data with data and then inverted commas, the name of the data, or if you want, you can just name it like this, that data is equals to empty cars. This will also do the same thing जो ऊपर हुई है. तो अब आपका जो डेटा है वो डेटा वन नाम से आ जाएगा, which is exactly the same, right? Whatever is suitable for you, you can do that. ठीक है जी, this is okay. Empty cars, data one, both are the same data sets. ठीक है, let's move on. ठीक है, अब हमारे पास डेटा सेट तो रेडी है. अब मान लो मुझे इस डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन के लिए टेस्ट करना है, विच इज डर्बिन वाटसन डी टेस्ट. सो सबसे पहले डर्बिन वाटसन डी टेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन तो तब चेक होती है ना जब मेरे पास कोई रिग्रेशन हो, और उस रिग्रेशन में ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं वो मैं टेस्ट करूंगी, राइट? तो पहले तो मुझे अपना एक मॉडल रन करना पड़ेगा, राइट? रिग्रेशन मॉडल. Yes. So what is my regression model? You can tell me what do you like to test for? So MPG, what is this? Miles per gallon. And then CYL, HP, this is horsepower. I think this is a lot of other things are there. So MPG, horsepower, and let's say WT, which is weight. इन तीनों चीजों पे हम लोग regression run करते हैं. This could be my Y variable, and let's say WT and HP
let them be my explanatory variables. ठीक है, तो what should I do? If I have to run that regression, I can do this. This is what I have to do. So my y variable is this. Let's say my y variable is mpg. My x variable is HP, which is horsepower, and plus let's say WP. ये मान लो मेरा मॉडल हो जाएगा, एंड डेटा इज डेटा 1 विच इज व्हाट आई हैव कॉल्ड हियर. और यू कैन डू एम्प्टी कार एज वेल, क्योंकि एम्प्टी कार भी हमने कॉल किया हुआ है, तो आप एम्प्टी कार भी यूज कर सकते हो या फिर डेटा 1, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ. एंड ऑल दीज डेटाज आर ऑलरेडी इन द न्यूमेरिक फॉर्म, वेल फॉर्मेटेड न्यूमेरिक फॉर्म में है सारी चीजें, तो हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा. दिस ऑल ऑफ दीज आर इन न्यूमेरिक फॉर्म, they're not in terms of characters. तो उस चीज को लेके हमें टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, तो once we do that, you will run this regression. ठीक है, आपने रन किया तो ये जो भी हमारी नॉर्मली सिचुएशन आ गई, all these variables are significant. R square value, adjusted R square value, they are quite high, and degrees of freedom is 29. So मेरे total observations कितने हैं मॉडल में, मेरे डेटा में कितने ऑब्जर्वेशन होंगे अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 29 है, और मुझे तीन पैरामीटर्स मैंने एस्टिमेट किए थे, तो 29 + 3 ये भी कर सकते हो. बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपके कितने ऑब्जर्वेशन थे, विच इज 32. ठीक है, फाइन. अब इस मॉडल में हमने कोई दिस इज बेसिकली, दिस इज नॉट अ मॉडल, बट एक्चुअली हमने ये जो हमारा डेटा है, दिस इज एक्चुअली नॉट अ टाइम सीरीज डेटा, राइट. तो ये टाइम सीरीज डेटा तो है नहीं, बट फिर भी जस्ट टू प्रैक्टिस द टेस्ट वी विल डू दैट, एंड देन वी विल डू अ सिमिलर एग्जांपल ऑन अ टाइम सीरीज डेटा, बिकॉज टाइम सीरीज डेटा इज वेयर वील सी मोस्ट ऑफ द ऑटो कोरिलेशन कमिंग इनटू पिक्चर. तो पहले इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है इस डेटा की. तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा कमांड है. क्या करेंगे हम लोग, हमारी जो कमांड है उसका नाम है DW टेस्ट, और ये जो DW टेस्ट कमांड है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द पैकेज LM टेस्ट. तो हमने LM टेस्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, ये पैकेज हमने इंस्टॉल किया हुआ है. सो प्लीज मेक श्योर व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रन दीज थिंग्स, यू हैव दीज पैकेजेस इंस्टॉल्ड ऑफ LM टेस्ट, क्योंकि पहले आप LM टेस्ट पैकेज इंस्टॉल करोगे, फिर उसकी लाइब्रेरी में उसका जो भी फंक्शन होंगे वो होंगे, फिर जब आप लाइब्रेरी कॉल करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो आपके यूसेज के लिए अवेलेबल होंगे. तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी कॉल नहीं करती या पैकेज कॉल नहीं करती और फिर मैं ये DW टेस्ट रन करने की कोशिश करती ना, तो ये पता है क्या आ जाता, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड या दिस फंक्शन इज नॉट फाउंड, दैट इज योर इंडिकेशन दैट मे बी यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड इट. तो ये एरर्स जो हैं ये इस तरीके से रीड करने हैं. ठीक है, तो अभी तो ठीक है, हमने सब कुछ किया हुआ है. सो या DW टेस्ट, एंड देन यू कैन हैव ब्रैकेट, एंड देन इसमें क्या क्या लिखना है देखो, फॉर्मूला लिखना है, मतलब कौन सा मॉडल है. ऑर्डर बाय इज नॉट इम्पोर्टेंट. ऑल्टरनेटिव, तो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ग्रेटर टू साइडेड या लेस. सो ग्रेटर टू साइडेड या लेस, तीनों करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या क्या होगा इस केस में. ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला मतलब कौन से मॉडल पे ये रन करना है. तो मेरा मॉडल नंबर 1 है, मॉडल _1, एंड देन द अदर वन इज ऑल्टरनेटिव, और ऑल्टरनेटिव में मुझे ब्रैकेट में लिखना है टू साइडेड. पहले तो लिखती हूँ टू डॉट साइडेड. टू साइडेड मतलब यू आर चेकिंग फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ ऑटो कोरिलेशंस. तो आपने क्या किया, ये रन किया, और जैसे ही आपने ये रन किया ये क्या आया, कैन यू सी दिस, दिस इज व्हाट यू गेट. क्या आया यहाँ पे, एक DW स्टैटिस्टिक आ गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग p वैल्यू आ गई, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, दैट द ट्रू ऑटो कोरिलेशन इज नॉट 0. ठीक है, तो इस केस में p वैल्यू 0.04 है, तो मान लो p वैल्यू 5%, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे,
क्या होगा? What is your decision going to be? That P is जो आपका less लेवल ऑफ less सिग्निफिकेंस than 5% है, तो दिस P इज is लेस less देन than दैट. reject So null. we will reject the null. Null was कि there is no autocorrelation, right? So you'll reject the null. So then that means there is some autocorrelation. It could be positive or it could be negative. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी दैट अगर मैं यहाँ पे टू साइडेड की जगह ऑल्टरनेटिव किसी और तरीके का लिखूं तो क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? तो उस चीज को देखते हैं एक बारी. तो पहले आप ये देख लो कि DW test and greater and less. So let me write greater first. Greater and less were there, right? Greater and less. Okay, fine. So I'll just copy this. And यहाँ पे मैं greater लिख देती हूँ. And let's try to do this. Same thing, but with a less part. So let's try to run this first. So what do you get here? आपका जो DW स्टैटिस्टिक है उसमें कोई बदलाव आया है क्या? No. नहीं, वो तो 1.3624 ही है, 1.3624 ही है, लेकिन आपकी पी वैल्यू बदल गई. और कैन यू सी व्हाट इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हियर? The true autocorrelation is greater than 0. What does that mean? That we have what kind of Negative. autocorrelation? Positive autocorrelation? Greater than 0 तो negative. हाँ, ऑल्टरनेटिव क्या बोल रही है? Key true autocorrelation is greater than 0. So that means there is Negative. positive greater than 0 Okay. autocorrelation. मतलब रो वैल्यू पॉजिटिव है ना? रो वैल्यू 0 मतलब नो ऑटोकोरिलेशन, राइट? Yes. And row value greater than 0 meaning positive autocorrelation. And row value less than 0 meaning Negative. negative, right? तो Actually, इसके इसमें बेस confusion आ रहा तो because ये तो हाँ याद कैसे करना है डी टेस्ट को देख डी वैल्यूज को देख के करना है 0 to 4 या रो वैल्यूज को देख. तो एक चीज देखो, डी और रो एक ही चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज में. आई विल टेल यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आई मीन ऑन द स्क्रीन आई विल टेल यू हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट. तो ये देखो, एक काम करते हैं, let's try to do that first because there is no point in getting into details without understanding it. So just a moment. Yeah. Can you see the screen?
Yes. हाँ जी, तो देखो मुझे क्या पता है, पहली बात तो डी और रो, देखो डी और रो, इनके बीच में क्या कनेक्शन है? डी इज अप्रोक्सीमेटली 2 times 1 minus rho, right? This is what we've understood. This was Yes. given to us. अगर आप जो डी स्टैटिस्टिक है उसका फॉर्मूला और ये 2 times 1 minus रो का फॉर्मूला कंपेयर करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट सिमिलर वैल्यूज, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, रो वैल्यू जो है, रो वैल्यू कहाँ से आ रही थी? कि जो मेरे एरर हैं estimated ET value is equals to, let's say, B1 plus B2 ET minus 1 plus UI UT, इस तरीके की वैल्यूज। तो ये जो मेरा रो था, ये एक्चुअली ये वाली वैल्यू थी, है कि नहीं? Yes, ma'am. राइट? तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर ऑटो कोरिलेशन नहीं है, सो व्हाट विल वी बी एक्सपेक्टिंग? कि इसके बीच में बेसिकली ये जो स्लोप कोएफिशिएंट है, दिस शुड बी 0, राइट? Yes. So if there is no autocorrelation, so rho is equals to 0 is corresponding to what? No autocorrelation. Rho or rho hat, whatever we are going to estimate. And rho अगर positive है या 1 है तो perfect linear relationship हो जाएगा, right? Yes or no? तो rho hat की value 1, meaning what? Perfect positive, Perfect. right? Hmm. So इसको मैं positive, perfect, positive ऑटो कोरिलेशन बोल सकती हूँ, ठीक है? And similarly, when this is -1, then we'll have a perfect negative autocorrelation. ठीक है? तो ये तो हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग रो वैल्यूज। अब इन रो वैल्यूज के कंपैरिजन में जो डी वैल्यूज हैं, तो जब हमारी रो वैल्यू 0 होगी तो मेरी डी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होनी चाहिए? 2 के बराबर, Yes. राइट? सिमिलरली सो वैल्यू ऑफ डी, राइट? उसके बाद फिर मान लो जब रो की वैल्यू 1 होगी तो डी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 0, Yes. है ना? एंड जब ये वैल्यू रो वैल्यू -1 होगी तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 4, Four. 4 के बराबर। तो अगर मैं डी वैल्यूज को देखूं तो मैं क्या देख रही हूँ? बिकॉज मेरा जो कोरिलेशन है वो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, राइट? तो मेरी डी वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली किस से किसके बीच में फ्लक्चुएट करेंगी? 0 से लेके 4 के बीच में, Yes. राइट? तो जो भी मेरा डी स्टैटिस्टिक है, द डी स्टैटिस्टिक दैट आई हैव, इट कैन टेक वैल्यूज बिटवीन 4 and 0, और उस रेंज में उनके अलग अलग डिसीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर डी वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 है, सो वी विल फील दैट देयर इज अ सिग्नल ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। And if it is very, let's say 4, then we will have a signal of negative perfect autocorrelation. And if it is very close to, let's say 2, in between, तो then हम लोग क्या बोलेंगे? No autocorrelation. तो मेरी जो डी वैल्यूज हैं इनकी रेंज क्या हो सकती है? ये इस रेंज में लाई कर रहे हैं, 0 से लेके 4 के बीच में, और बीच में कहीं 2 आता है, राइट? डी वैल्यूज के साथ, है कि नहीं? Yes. फाइन। तो आपने क्या किया हुआ है अब? तो मुझे पता है कि जब मैं 2 के नजदीक हूं तो देर इज नो ऑटो कोरिलेशन, जब मैं 0 के नजदीक हूं तो देर इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, और अब जब मैं 4 के नजदीक हूं देन देर इज नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, राइट?
तो मुझे ये तो पता चल गया कि जब मैं इसके आसपास हूं तो देर इज नो ऑटो कोरिलेशन, जब मैं इसके आसपास हूं तो देर इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, जब मैं इसके आसपास हूं तो देर इज नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। लेकिन आप ये चीज समझ सकते हो कि बीच में भी तो कुछ एरिया आएगा जिसमें मैं क्या बोलूं कि मैं 0 के नजदीक हूं या मैं 2 के नजदीक हूं, तो मुझे वो चीज समझ नहीं आएगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कि मैं 2 के नजदीक हूं या मैं 4 के नजदीक हूं, है कि नहीं। तो इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू a particular n value and your number of explanatory variables, हमारे पास अलग अलग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेट से 5% या फिर 1%, टेबल में यही दो वैल्यूज होती हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जिसके लिए डेटा अवेलेबल होता है। हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, एक नंबर होता है DL, एक नंबर होता है DU। तो जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कि मेरा सैंपल साइज है 30 और जो भी मेरा मॉडल मैंने रन किया था मान लो उसमें दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स थे, तो लेट्स से दिस इज 30 एंड दिस इज 2, और लेट्स से मेरे को बोला गया है कि आपको ये टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना है। तो मैं टेबल में जाऊंगी, वहां n वैल्यू 30 देखूंगी, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स 2 का कॉलम होगा, और वहां में मैं 5% वाला लेवल चेक करूंगी। उसके बेसिस पे मुझे DL एंड DU ये दोनों वैल्यूज दी गई होंगी टेबल में, ठीक है। लेट मी शो यू दिस। सो सो मैम जो हमने अभी आर में टेस्ट किया था उसमें जो हमें DW वैल्यू मिली थी वो क्रिटिकल वैल्यू थी ना। नहीं, जो हमें नहीं, क्रिटिकल वैल्यू वो थोड़ी देंगे, वो तो हमें तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू देंगे। तो वो कैसे, मतलब उन्होंने एक सिंगल वैल्यू दी, बल्कि हमें सिंगल तो मिलती नहीं, हमें रेंज मिलता है ना जनरली। नहीं, आपको रेंज नहीं मिलेगी ना। डी स्टैटिस्टिक का जो फॉर्मूला है उसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो एक ही नंबर आएगा ना। ये जो अभी हम DL और DU की बात कर रहे हैं ये क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज, जो हमें पूरी 0 से लेके 4 की रेंज को अलग अलग हिस्सों में बांटने में हेल्प करेंगी। तो जैसे कि अब मान लो ये एग्जाम्पल जो हम लोग R में टेस्ट कर रहे हैं, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 32, तो n मेरा हो गया 32, राइट। और मेरे पास इसमें जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है वो 2 है। तो अगर मैं टेबल में देखूं n की और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेट से 5% पे चेक करते हैं। सो दिस इज योर टेबल एंड DL एंड DU वैल्यू विल बी गिवन एट 5% लेवल। तो 5% लेवल पे मेरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 2 है तो k प्राइम इज इक्वल्स टू 2, एंड मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स सैंपल साइज जो है वो 32 है, तो उसमें मेरी DL और DU वैल्यू कितनी हो गई, दिस वन, ये दोनों नंबर्स हो गए, राइट। यस मैम। तो अब इस नंबर्स 32 एंड 2, राइट, और DL की वैल्यू है 1.309 एंड DU इज 1.574, ठीक है। अब हम लोग वापस इस तरीके से टेबल, ये टेबल जो है वो 1% लेवल पे भी होती है। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि n की वैल्यू 40 एंड k प्राइम इज इक्वल टू 4 जो है उसमें DU की वैल्यू ये है, DL की वैल्यू ये है। सो या फाइन, एनीवेज कमिंग बैक टू द स्क्रीन नाउ। तो अब देखो, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम क्रिटिकल वैल्यूज निकाल के ले आए हैं। तो ये दो मेरी क्रिटिकल वैल्यूज हमने निकाल दी, ठीक है। तो मेरी जो DL और DU वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो गई, लेट्स ट्राई टू राइट देम। सो व्हाट इज DL वैल्यू, 1.309, right? What is DU value? 1.574. And can you tell me what is 4 minus DL and what is 4 minus DU? ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? This is going to be 2.691, right? Yes. And this is going to be 2.426, है कि नहीं, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, दिस वन, 2.426
426 एंड ये वैल्यू क्या हो गई 2.691. So this is actually 4 minus du and this is 4 minus dl. तो अभी हमने कैलकुलेटेड वैल्यू की बात भी नहीं करी है. अभी ये जो अलग अलग हिस्से बने हैं ना, इससे क्या क्या बन गया है, इससे मेरे पास अलग अलग रीजन्स बन गए. और वो अलग अलग रीजन्स क्या हैं, वो ये रीजन्स हैं. तो अगर मैं इस रीजन में हूं तो क्या होगा, आई एम वेरी क्लोज टू जीरो, राइट? व्हेन यू आर क्लोज टू जीरो व्हाट हैपेंस, you have a positive autocorrelation, right? ठीक है. अगर आप बहुत क्लोज टू 4 हो तो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन. अगर आप बहुत क्लोज टू 2 हो देन नो ऑटो कोरिलेशन. एंड ये जो दो रीजन्स हैं, ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते. दीज टू आर जोन्स ऑफ इनडिसीजन. तो अब हमें क्या करना है, ये सब जो डेटा आया ये सब क्रिटिकल वैल्यूज को यूज करके आया. तो अब जो हमने रिग्रेशन रन किया और उसमें जो डी वैल्यू आई, हमारी जो डी वैल्यू आई थी वो थी 1.3624. सो मेरी जो डी वैल्यू थी वो थी 1.3624. 1.3624. हाँ जी. सो 1.3624 कहाँ पे लाई कर रहा है, समवेयर हियर ना. यस मैम. 1.3624. तो इसके बेसिस पे तो हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए, कांट टेल. तो वी आर इन द जोन ऑफ इनडिसीजन, राइट? यस. So this is how you actually decide. तो मैम